نو صاحب آپ نے لوگوں کی رائے سنی کہ کیا ان کے جو ہیں وہ تاثرات ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ میری رپورٹ نہیں ہے، بیورو آف امیگریشن نے جو اسٹیٹسٹکس دی ہیں اس کے مطابق 2022 سے جب سے یہ انسرٹینٹی شروع ہوئی ہے اس سال 300% جو ہے وہ برین ڈرین آپ کا انکریز کیا ہے۔ اس سال جو ہے وہ تقریباً کہا جا رہا ہے 7 لاکھ سے اوپر لوگ گئے ہیں، پچھلے سال 8 لاکھ سے اوپر جو ہیں وہ لوگ گئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا بھی کوئی کنسرن ہے کہ یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے، کیونکہ جو ان کی اس وقت جس طرح جو طرز حکومت ہے اس سے تو لگتا نہیں ہے۔ آپ آئی ٹی سیکٹر کو دیکھ لیں، ایک سیکٹر جو ایک سال میں 25% گرو کر رہا تھا، اس کو آپ بالکل ہی جو ہے نا آپ نے کلیپس پہ آپ لے آئے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ واقعہ جب وہ ایک رات کی دلہن ایک آئے تھے نا پرائم منسٹر صاحب انوار الحق صاحب، تو انہوں نے کہا تھا بھئی یہ تو اچھی بات ہے، باہر جائیں گے اور یہ ریمیٹنسز آئیں گی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ہماری حکمران اشرافیہ کا جو ہے اس کے بارے میں یہی رویہ ہے، ٹھیک ہے، صرف وہ کردار بدل گئے ہیں۔ براڈلی اسپیکنگ تھوڑا سا میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم اس میں ذرا ایک بہت یہ کمپلیکیٹڈ سا سبجیکٹ ہے جس کو اٹ سیلف جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ نظر بظاہر ویسے اگر اس طرح بات کریں تو بھائی ملک سے باہر جانے کا رواج کب نہیں تھا، جب 70 سے شروع ہوا۔ میں اور مظہر جب ابھی کالج بھی نہیں پہنچے تھے تو لوگ دبئی چلو کی باتیں کر رہے تھے، اور ہمیں کہا جا رہا تھا کہ آپ بیوقوف ہیں کہ آپ کالجوں میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہم دونوں بدقسمتی سے اس سوچ کے حامل تھے کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ، کسی ملک کو کریں گے سنواریں گے، اور آج بھی خیر الحمدللہ اسی پہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جہاں پر گنجائش تھی، جہاں پر ہمارا اعلیٰ ترین، کیونکہ آپ کو یہ جو آج کل کا ای ورک ہے اس کے لیے تو باس آپ کو وطن سے جانے کی ضرورت نہیں ہے نا، یو جسٹ نیڈ اے فون، اے لیپ ٹاپ اینڈ اسپیڈی کال۔ اب یہ ہے کہ یا تو ملک کو نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ بنا لیں یا نیشنل ویلفیئر اسٹیٹ بنا لیں۔ تو ہم نے فی الحال فیصلہ کیا ہے کہ ذرا سیکورٹی ٹھیک کر لیں تو اکتوبر کے بعد رجحان ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ خاص طور پر ان شعبوں کے بارے میں تھوڑی سی رحم کی فریادی کی جا سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہوتا ہے، انہوں نے کیا فرق ڈال دیا ہے، یعنی یہ چل رہا ہے۔ ایکس نے جو کبھی بھی ٹویٹر تھا اس نے کیا کر لیا اس ملک میں، مصر میں کیا کر لیا، تھوڑی سی دیر کے لیے عرب بہار آئی تھی اور پھر خزاں ہو گئی، تو ہتھولا رکھو، جان دو، چھوڑیں، کوئی بات نہیں۔ اور ویسے بھی اگر فائل یعنی وال لگانی تھی تو جلدی لگا لیتے، اور دوسری بات یہ کہ وہ کام بھی کر رہی ہوتی اس کو پہلے چیک کر لیتے یہاں طرح اگر آپ کے ٹیلی فون کے ساتھ لگا کے کر لیتے اس طرح سلیکٹیو اس طرح کے لوگ، تو یہ کہ اس طرح، لیکن آئی تھنک اٹس اے ویری سیریس سبجیکٹ، اور اس کو ہم مختصر جو ہے کلمات کے ذریعے سے ہم انصاف نہیں کر پائیں گے اس موضوع سے۔ آئی تھنک صاحب کہ جو سب سے میرا خیال ہے برننگ ایشو جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے وہ ہوپ کا ہے کہ ہوپ ختم ہو رہی ہے۔ مطلب ہمارے یہاں پہ نہ رول آف لا ہے، اگر آپ پاورفل ہیں تو آپ کے لیے رول آف لا اور ہے، اگر آپ میرے آپ جیسے ہیں تو ان کے لیے ہمارے لیے اور ہے، میریٹوکریسی نہیں ہے، آپ بیمار اگر آپ ہو جائیں تو ہسپتال میں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں گے۔ لائک وائز ایجوکیشن سیکٹر ہمارا جو ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح اٹس ان دی ڈول ڈرمز، تو وہ ہوپ تو ختم ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے شاید کہ یہاں پہ ایون اگر کوئی وائٹ کالر جاب کرتا ہے تو وہ باہر جا کے بلو کالر جاب کرنا جو اس کو بہتر سمجھتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، باتھ روم صاف کرنے پڑیں گے، مجھے باقی چیزیں کرنی پڑیں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ جو مجھے پرومس کیا گیا ہے اگر میں کام کروں گا تو مجھے آگے جا کے وہ ملے گا۔ دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ یعنی واقعتاً میں فرینکلی اسپیکنگ میں نے آپ کو یہی کہا کہ یہ موضوع اٹ سیلف کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس پہ ہم جتنی دیر بات کر سکیں اتنا کم ہے۔ And it resonates with everyone, I think. With everyone. اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ جو عام طور پر ظاہر ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آج کیا بکے گا، آج کی پکائیے، وہ ظاہر ہے یہ ہمارے مسئلے ہوتے ہیں۔ آپ یقین مانیں تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، I was shocked. A very very senior banker جو اتفاق سے میرے بچپن کے اسکول کے یعنی کلاس فیلو جو تھے ان کے چھوٹے بھائی ہیں، so he treats me like elder brother. ٹھیک ہے
अच्छा, इत्तेफाकन अनफॉर्चुनेटली उनका जवानी में एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, तो ज़ाहिर एक और डीप एक बॉन्डिंग सी हो जाती है ना आपकी कि चलें जी अपने। ही कॉल्ड मी, बड़ी उनकी गंभीर आवाज़ थी, उसने कहा जी मैं आपके पास आके आपको जगाना चाहता हूँ। अच्छा, वो अदरवाइज यानी कि मेरे से बड़ा दबा हुआ रहता कि जी बड़े भाई हैं और ज़ाहिर ख़ास तौर पर मरहूम बड़े भाई की निशानी। उन्होंने कहा जी आपको मैं सुनता रहता हूँ, आप पता नहीं कौन सी चीन जापान की बातें करते रहते हैं। आपको पता है गुज़श्ता 1 महीने में मेरे पास 5 वालिदैन आए हैं और उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को समझाएं। उनका बेटा जो है वो जोर दे रहा था, यानी वो जो लोग उनके पास आए कि जी जो कुछ है वो बेचें और बाहर जाएं और या इसको गिरवी रखें और ये हिसाब से आप लें और मुझे भिजवाएं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि हमारे एक और दोस्त जो हैं वो आए, वो बड़ी अच्छी यानी कि बरतानिया में एक यूनिवर्सिटी के वो वहाँ से वो रिटायर हुए, ठीक है, और वो इल्म समाजियात सोशियोलॉजी के बड़े वो। अच्छा, उनको आदत है ज़ाहिर है चूँकि सारी ज़िंदगी उन्होंने सोशियोलॉजी में लोगों से इंटरेक्ट किया है, तो वो कहने लगे कि यार इत्तेफाक ऐसा है मैं रिटायर हूँ तो मैं करता ये हूँ कि कभी किसी दिन बर्मिंघम चला गया, किसी दिन ब्रेडफोर्ड चला गया, मैनचेस्टर चला गया। तो ये कहा कि वहाँ जब मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ तो जो लोग सर्व कर रहे होते हैं तो मैं उनसे इंगेज करता हूँ। उन्होंने उनकी कहने लगे कि मेरी एनेक्डोटल ये फाइंडिंग है इन 3 शहरों में कि 40% of the people who were serving, who were waiting on tables, they have completed their masters and they were saying we are not going back home क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो हमारे काम का नहीं। तो मैंने कहा कि देखें इसमें तो यार भाई ये भी है कि उन्होंने जो पढ़ा भी तो उसमें भी तो गलती है ना। अगर आप, मैंने कहा भी हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन दुनिया तो कहाँ जा रही है ना, मेरे दुनिया कहाँ जा रही है। मैंने कहा नहीं, मैं इनमें से अक्सर की ऐसे बात कर रहा हूँ जो शायद मेरे और आपसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। एंड उसमें उसने कहा कि 2 बंदों ने कहा कि जी वी वर वन ऑफ द पायनियर स्टूडेंट्स ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट स्टिल वी प्रेफर टू स्टे हियर। तो अब बताइए आप इसमें आप क्या करें। आपकी वही बात है कि जो, और तीसरी बात, सॉरी एक मिनट, मज़र ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, एनेक्डोटल वाक़या। मेरे वाक़तन जो है वो रोंगटे खड़े हो गए। ये जिस बच्ची की बात कर रहे हैं जो बनी थी, शी वॉज अ लॉ स्टूडेंट जी, और उनके चचा जो हैं बाबू गुलाब, वो बहुत मशहूर मकरान में नेशनल पार्टी जो कि प्रो पाकिस्तान है, बजिंजो साहब की बनाई हुई, डॉक्टर मालिक जिससे आजकल है। मुझे ये पता चला, इंतहाई फैमिली ज़राए ने परेशान होकर बताया, कुछ दिन पहले यहाँ इस्लामाबाद में फ़िज़ाइया कॉलेज में एक बच्चा पढ़ता था, ठीक है, उसको उनके वालिदैन ने वहाँ भेजा कि जी बच्चा ख़राब ना हो, एक्सट्रीमिस्ट के हाथ ना लग जाए। बिल्कुल सही। एंड दैट इज़ नॉट अ पुअर फैमिली। वो सी फूड, नॉट रिच पीपल, लेकिन मिड लेवल के ऊपर दे एक्सपोर्ट, माइंड इट, एक्सपोर्ट। वो बच्चा इस्लामाबाद से वहाँ गया और कहा मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ कोयटा हुनर लेक देखने, वापस नहीं आया, पहाड़ों पे चला गया। ये जो मज़र बात कर रहे हैं ना, क्या ये चीज़ें हम डिस्कस, ये जो होपलेसनेस कि आपको होप करना होना कहाँ ले जा रहा है। और जब अब हम बात कर रहे हैं तालिबान की, कभी एक्सट्रीमिज्म की एक नई फॉर्म आ रही है खारिज की शक्ल में वगैरह वगैरह, तो भाई ये तो उनके लिए हम तो यानी कि रिक्रूट्स दे रहे हैं, प्रोवाइडिंग फॉडर फॉर देम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगेन कह रहा हूँ इट्स वेरी, आई विश आई न्यू, तो फिर हम इसी पर फोकस रखते, बट इट्स सो पेनफुल के बात, इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल। और अभी जो बात आप ये कर रहे हैं, अगेन उसी तनाजुर में जो भी ये अटैक हुआ है, इस पे दोबारा ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि पढ़े लिखे नौजवान और स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो किस तरह उनके साथ ये एजेंडा जो है वो रेजोनेट फ्रॉम पसनी, जो छोटा शहर है। और फिर जब मैंने उस स्टोरी को चेस किया तो पता चला कि इन 6 हफ्तों में ये 15 ऐसे बच्चे हो चुके हैं। 15, a small city of 100,000, 15 in them। तो अगर ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों को जगाने के लिए काफ़ी नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर किस चीज़ का, मुझे समझ नहीं आ रही हम किस चीज़ का जो है वो कर रहे हैं।
मौलवी साहब, आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आप ये समझते हैं कि सिर्फ हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है वो इसको सिर्फ रिमिटेंसेस के जो है वो तनाजुर में देखती है कि बाहर से रिमिटेंसेस आ रही हैं और मुल्क में जो है वो नेशनल एक्सचेकर को जो है वो भर रही हैं? बिकॉज अभी यही कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है या बाहर से जो पैसा आ रहा है वो इसी तनाजुर में आ रहा है। लेकिन क्या हम ये नहीं सोच रहे कि यहाँ पे हमारे पास बचेगा कौन? हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारा IT सेक्टर सारे उठ के जो है वो प्रोफेशनल्स बाहर जा रहे हैं। व्हाट विल वी बी लेफ्ट विद? जी बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए अभी नुसरत साहब 70s की जो बात कह रहे थे, जिस वक्त मैंने आपका सुना, ये शुरू में भी बात हो रही थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि इस टॉपिक के हवाले से, तो मुझे एग्जैक्टली 70s का वो दौर याद आ गया। और मैंने बहुत पहले इस पर लिखा भी था। लियारी के पुराने लोगों से जब मैंने बात की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की को आप आज तक क्यों सपोर्ट करते हैं, लियारी के लिए तो बहुत कुछ नहीं हुआ, तो उसने कहा कि एक चीज़ जो जिसने बहुत ज़्यादा हमें कुव्वत दी और बहुत ज़्यादा हमारे माशी मसाइल काफ़ी हद तक हल किए, वो ये थे कि जब भुट्टो साहब 70 में इलेक्ट होके आए और वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने 2 काम किए जिससे हमें हमारी माशी सूरत हाल, उनके बकौल के यहाँ के लोगों की माशी सूरत हाल में बेहतरी आई। और वो ये थी कि उन्होंने पासपोर्ट की कीमत आदी कर दी थी और जो मिडल ईस्ट का रास्ता खोला, उसकी बिना पे बहुत से और ख़ास तौर पे जो मजदूर तबका था वो बहुत गया मिडल ईस्ट में उस पीरियड में। और जो नुसरत साहब बात कर रहे हैं कि उस ज़माने में बाकायदा इतनी बड़ी तादाद में लोग जा रहे थे कि उसमें बाकायदा टेलीविज़न पे ये एक सीरीज़ आई, दुबई चलो, ड्रामा था दुबई चलो, सीरीज़ तो नहीं थी, एक पूरा ड्रामा था दुबई चलो। लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट बेसिकली, जब हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं तो ज़ाहिर है उस वक्त गवर्नमेंट का वो ये था कि जी चूँकि इस वक्त गवर्नमेंट के इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो कम से कम लोगों को एक ज़रिया मिल गया, रोज़गार का ज़रिया मिल गया। और फिर हमने देखा कि बरसों, कई दहाइयों तक लोगों ने जो मिडल ईस्ट में नौकरियां की और उन्होंने यहाँ के जो आज की सिचुएशन है वो माजी से ज़रा बहुत मुख्तलिफ है, जहाँ जो आपकी यूथ है और यूथ आपकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, जो 60-65% यूथ है, वो डायरेक्शनलेस नज़र आए, उसको कोई अपने लिए कोई डायरेक्शन नज़र ना आए, उसके लिए आगे जाने के मौके नज़र ना आए उसको। हमारी इकोनॉमी का हाल ये है कि हम ये समझे, और वो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो भी ये समझते थे कि बस कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को जो है वो आप स्ट्रॉन्ग कर दें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी संभल जाएगी। ये तो हमारा माइंडसेट था उसमें, और आज भी उसी तरह का माइंडसेट है। तो वो यूथ क्या करे? देखिए, बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं होती, बाहर जाके आप नौकरी करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं यहाँ उसमें। यहाँ ना इंडस्ट्री लग रही है, ना यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज के मौके मिल रहे हैं, ना यहाँ फ्री एक्सप्रेशंस के वो जराए आपको नजर आते हैं। आप पूरी मीडिया इंडस्ट्री में उठा लें कि मीडिया इंडस्ट्री में इस वक्त क्या हाल है इसमें, और दूसरी इंडस्ट्रीज का आप उठा लें उसमें। तो ऐसे में वो नौजवान जो अभी यूनिवर्सिटीज और मुख्तलिफ जगहों पे तालीम हासिल कर रहा है, उसे आगे कोई मुल्क के अंदर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, उसको कोई वो जॉब अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही, तो वो क्या करे? वो कोई अपनी खुशी से, बहुत से लोग खुशी से भी जाते हैं और अच्छी बात है, बाहर जाके तालीम हासिल करना या इवन जॉब करना में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जिस वजह से वो बाहर जा रहा है और उसके माँ बाप पे वो जो फाइनेंशियल बर्डन आता है, उसका भी हम अंदाजा नहीं कर सकते। खास तौर पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं, उनके जाहिर है उनका वो फाइनेंशियल बर्डन तो आपके जो डॉलर्स की और उसकी हालत है, पॉन्ड्स की हालत है, उसके बाद वो बर्डन तो उसी के ऊपर आ रहा है। तो ये कोई इतना छोटा मामला नहीं है, लेकिन हमारी अप्रोच, बदकिस्मती से हमारी रूलिंग एलीट की अप्रोच वो है ही नहीं कि आप वो ये समझ सकें कि पाकिस्तान में इस वक्त यूथ की जो सूरत हाल है, इस सब के बावजूद कि 60-65% आपका यूथ है, आप उठा लेना जिस मुल्क में PhD और MPhil की लड़कियां सुसाइड बॉम्बर्स बन जाएं, उस मुल्क में आप किस तरफ देख